Okay, is the screen visible? Sir, black screen. तो लास्ट टॉपिक हम लोग ने जो थ्योरी में देखा था दैट वाज द रिस्ट्रिक्टेड एरिया, राइट? हमने रिस्ट्रिक्टेड एरिया एक एग्जांपल लिया था VIR 34 का, ठीक है? एंड दिस वन वी सॉ कि V रिप्रेजेंट्स द, जनरली इट रिप्रेजेंट्स द FIR code and IR represents the Indian region, and 34, this number was the 34th restricted area of this particular region, ठीक है? Similarly, we are going to write the for prohibited area. Okay, if we talk about prohibited area, it is going to be the same VIP, right? And respective numbers, whatever the number would be. For example, let's take an example 47. Okay, so in this also, this V represents the, it is same, like it represents the particular region or FIR code. It represents the FIR code, and this IP represents the Indian prohibited region. Okay, Indian prohibited region. Also, it is the Apsara code. It was also called as a Apsara code. Okay, it was also called as a aeronautical fixed and safety reporting system. Apsara. Similarly, it is for the danger zone also, right? VID, right? For danger zone, it will be VID. It was also mentioned in the chart. Okay, it will also be mentioned in the same chart. हमने जब कल चार्ट देखा था प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने देखा था साइड में कॉलम जो रहेगा उसके अंदर ये सब चीजें मेंशन्ड ऑलरेडी. What does the D represent? What does the P represent? What does the R represent? Everything is mentioned. Okay, in this one also there can be a number, any number. It can be a 2-digit or 3-digit number. It can be a 2-digit or 3-digit number, right? 2, 3, 4, something like that. Okay, same thing. V represents the FIR code, ID represents the Indian danger zone, and 234 represents the 234th danger zone of particular region. Okay, now one thing we need to keep in mind is the restricted region. Flying is restricted, right? With certain restrictions you guys can fly. Okay, nature of restriction was you have to take the permission from ATC, and once the ATC has approved the permission, you can fly in this restricted region. Okay, but permission was mandatory in restricted region. Permission was mandatory. You have to compulsory take the permission, and in that permission the ATC will specify you what all restrictions are there in that particular region, and you have to comply with that particular restrictions. Okay, for example, ATC can tell you that you cannot increase your speed, or you cannot climb in this particular region or something, right? It could be anything. Okay, means restricted in this restricted region, the ATC can specify you cannot fly below certain flight level. For example, flight level 100, you cannot fly below flight level. But if you want to fly in that region, you have to go above flight level 100. This could be one restriction, right? This type of general restrictions are available in restricted region. If we talk about prohibited region, so prohibited region is a type of region also called as no flying zone. It is also called as a no flying zone. Now, what does this no flying zone means? Right? Aircraft cannot fly in this prohibited area under any circumstances.
ठीक है, under any circumstances no aircraft can fly in this prohibited region. ठीक है, that's why it is called as a prohibited area. Now totally there are 6 prohibited areas in India, right? General prohibited areas. This can be asked in questions. Okay, we'll write down the list of all the prohibited areas. ठीक है, टोटल ऐसे टोटल 12 प्रोहिबिटेड एरियाज है जो ऑल ओवर इंडिया में है. These are general prohibited areas. इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट? बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये 12 हमें याद रखना है. We'll list down each and every 12 prohibited areas. So पहला है ताजमहल, right? Which is in Agra, UP, Uttar Pradesh. Right? This is the first prohibited area. Second one is the Rashtrapati Bhavan. Rashtrapati Bhavan, it is in Delhi. Third one is the Parliament Building. This is also in Delhi. Fourth one is the Prime Minister's residence. Prime Minister's residence. This is also in Delhi. Which is in Mumbai. एक बार वापस रिपीट करेंगे, ये क्या बोला आपने लास्ट वाला? Tower of Silence. It's in Dakhma, Mumbai. Sixth one is the airspace around many defense and Indian Air Force bases. Right? ये सारे areas जिधर भी all over India में जहां पे भी airspace है, defense है वहां पे. Right? We'll write down as airspace around many defense and Indian Air Force bases. Air Force bases. ऑल ओवर इंडिया में जितने भी डिफेंस एयरपोर्ट्स है, डिफेंस सब स्टेशन है, वो सारे किसके अंदर आते हैं? प्रोहिबिटेड एरियाज के अंदर आते हैं. उसके ऊपर कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकता. ठीक है, फिर उसके बाद है मथुरा रिफाइनरी. which is also in Uttar Pradesh. फिर 8th नंबर पे है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BHA, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, शॉर्ट फॉर्म में बार्क, BARC. इट इज इन मुंबई. फिर 9th नंबर पे है त्रिपुरा तिरुमाला, तिरुपति तिरुमाला, राइट? तिरुपति बालाजी टेम्पल.
Tirupati, Tirumala. It is in Andhra Pradesh. On 10th number, we have Golden Temple. That is in Amritsar. Amritsar, Punjab. On 11th number, we have Padma Swami Temple. Padmana Swami. Padmanabha. Swami Temple, which is in Kerala. Then on 12th number, we have Sriharikota Space Station. Sriharikota Space Station. Right, it is also called as Satish Dhawan Space Center. Satish Dhawan Space Center. It is also in Andhra Pradesh. Okay, these are the list of 12 prohibited areas in India. So if we talk about the danger zone, right, danger area. If we talk about the danger area, so danger area is a type of airspace. It is a defined dimension within which activities like dangerous activities are generally taking place. For example, it can be any nuclear power plant or research center, where if you fly, you will definitely get infected. Right. So in this region, we can fly, but no prior ATC permission is required. Right. You can fly in danger zone. No prior ATC permission is required. Okay. So in this zone, you guys can fly. No prior ATC permission is required for flying. No, but the condition is you will solely be responsible. Okay. No one will be responsible for anything or something happens to you. Right. So you have to keep a lookout. What is the danger zone? Right. For example, in note 2, right, note 2 of your question paper, it will be mentioned ये danger zone, for example, some time के लिए, right, or means anything if it is mentioned in your note 2, you need to consider कि वो danger zone के बारे में कोई भी note दिया हुआ है कि ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है, पर्टिकुलर अल्टीट्यूड के लिए है या फिर पर्टिकुलर सेक्टर के लिए खाली है, राइट. तो यू नीड टू कंसिडर दैट थिंग और इट्स ऑन यू कि अदर यू आर फ्लाइंग इन दैट डेंजर जोन और नॉट. जनरली क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस जोन में नहीं जाएंगे. ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस जोन को स्किप करेंगे अगर जो हमारे रूट के बीच में आता है तो. ठीक है, बट प्रैक्टिकली इट्स ऑन द पायलट कि अदर दे वांट टू फ्लाई इन दैट जोन और नॉट. ठीक है, बहुत लोग फोटोग्राफी के लिए भी जाते हैं, ऐसे जोन्स में जाते हैं, एरियल फोटोग्राफी के लिए, राइट, ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए जाते रहते हैं. नॉर्मल रूट्स के बीच में भी डेंजर जोन्स आते हैं. सेम चीजें है. इफ यू राइट VID 34, राइट, तो इन दिस वन इट रिप्रेजेंट्स द 34th डेंजर इन दिल्ली FIR. सीधा सा बात है, राइट. इन दिस वन VI represents the FIR code, D represents the
danger area, and 34 represents the 34th danger area in the Delhi FIR. Okay, this was the overall danger prohibited and the restricted areas. Now we'll head towards the next topic, that is the ATS routes. हमारा जो next topic होने वाला है ATS routes. ATS routes, अभी तक हम लोग ने जो देखा था, राइट, मैं जब मैप दिखा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि इस तरीके का जो हमारा VOR है, उस VOR के अराउंड इस तरीके के कुछ रेडियल्स निकलते हैं, राइट, दे आर जनरली कॉल्ड एज रेडियल्स, जो 360 डिग्री में निकलते हैं। और कोई तो 2-4 रेडियल्स ऐसे रहते हैं जिनको पब्लिश कर दिया जाता है, राइट, विस्की 20, विस्की 31, राइट, ये सारे रेडियल्स होते हैं जो पब्लिश कर दिए जाते हैं भाई हु इज द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट, ही इज रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी जो इन सारे रूट्स को पब्लिश करती है। बाकी ऐसा नहीं है कि बाकी सारे रूट्स पे भी फ्लाई नहीं कर सकते हम लोग, बाकी सारे जो रेडियल है इन सब पे भी फ्लाई कर सकते हैं, वी कैन फ्लाई, ठीक है, बट दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज रूट्स। अब यहाँ पे अगर जो मोस्ट कॉमनली बोले तो सारे एयरक्राफ्ट इसी रूट पे ही जाएंगे, राइट, दीज आर द पब्लिश रूट्स। तो कितने टाइप्स के ATS रूट्स होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो लेट्स राइट डाउन। उनका डायमीटर क्या होता है, उनका डायमेंशन क्या होता है, उनका प्रीफिक्स सफिक्स क्या रहेगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे अच्छे से। चलो, इफ यू टॉक अबाउट ATS रूट्स, तो we'll write down as it is a specific three-dimensional pathway in controlled airspace. It is a specific controlled airspace designed to channel the flow of air traffic for the safe, orderly and expeditious provision. ये 3 वर्ड याद रखना, किस चीज के लिए, तो for the safe, orderly and expeditious means fast, EXPEDITIOUS, expeditious provision of ATS, air traffic services, ठीक है। फिर इट रिप्रेजेंट्स द कॉरिडोर, क्या है, एक तरीके का कॉरिडोर है, इट रिप्रेजेंट्स द कॉरिडोर ऑफ protected airspace that facilitates systematic air traffic movement under ATC guidance। ठीक है, दिस इज द ओवरऑल डेफिनेशंस। और कहाँ पे रहते हैं दीज रूट्स आर जनरली पब्लिश्ड इन, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, these routes are generally published in AIP, it is a document, right, aeronautical information publication, right, it is published in AIP। जितने भी रूट्स हैं
सारे AIP में पब्लिश्ड रहते हैं। और इसके अंदर क्या क्या रहता है, तो इट कैन इंक्लूड airways, advisory routes, arrivals and departure routes, with designators with specifications, right? With specifications like designators, route designators, runway designators जो हमने previously पढ़ा था, waypoints, reporting points, and altitudes. These all things are already in the route. जो हम रेडियस देख रहे थे उसके अंदर जनरली ये सारी चीजें रहती है पहले से ही, ठीक है। तो दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द ATS रूट्स। नाउ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका लेटरल और वर्टिकल लिमिट दोनों रहता है, राइट। मींस लेटरली आल्सो, राइट। इफ वी टॉक अबाउट लेटरल एंड वर्टिकल, तो लेटरल मींस लाइक दिस, इफ दिस इज ATS रूट, सो लेटरली उसका डायमेंशन रहेगा, राइट। लेटरली मींस दिस फ्रॉम सेंटर से ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मींस इट विल बी हॉरिजॉन्टली इतना डायमीटर का हो सकता है, नॉटिकल माइल्स, इट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ नॉटिकल माइल्स, ठीक है। ये रूट इतने हॉरिजॉन्टली भी डिफाइंड हो सकता है और इसमें वर्टिकल लिमिट्स भी हो सकती है, राइट। दोनों रहेगा। वर्टिकल लिमिट्स, फॉर एग्जांपल हमने चार्ट में देखा था, राइट। प्रीवियस चार्ट में हम लोग देख रहे थे, मैंने बताया था कि उसके अंदर लोअर लिमिट वो लोग ने लिखा था इस तरीके का चार्ट का 2500 फीट, राइट। और वर्टिकल लिमिट्स भी वो लोग ने लिख रखा था कुछ इस तरीके का 100 बाई 460, राइट। रूट्स के साइड में लिख रखा था वो लोग ने, जब हम लोग चार्ट देख रहे थे कल। तो ये सब क्या था, दीज आर द लिमिट्स, हॉरिजॉन्टल लिमिट्स। उस रूट पे फ्लाई करना है तो तुम्हें बेसिकली इस वर्टिकल लिमिट्स को फॉलो करना पड़ेगा, यू हैव टू बी इन दिस लिमिट, पर्टिकुलर लिमिट। Okay, so now if we classify these routes on the basis of navigation technology, it can be classified on multiple basis, right? So पहला अगर जो हम classify करते हैं on the basis of navigation technology, right? First classification on the basis of navigation technology. So it is classified into further two parts: RNAV routes and non-RNAV routes, area navigation and non-area navigation, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, right? You can classify into non-RNAV and RNAV, right? These routes can be further classified into non-RNAV and RNAV routes. Now, what is non-RNAV routes, right? If I say non-RNAV ATS route, also called as conventional routes, can also be called as conventional routes. So what is it? So now, yes, जिसमें रेडियो नेविगेशन की बात कर रहे हैं सर आप, RNAV। यस, एक में जिसमें रेडियो नेविगेशन रहेंगे और एक में जिसमें नहीं रहेगा, ठीक है। सो नॉन आरनेव रूट्स आर जनरली ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन एड्स। इसमें क्या रहेगा, इसमें हम सारे ग्राउंड बेस्ड यूज करेंगे, ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन एड्स। फॉर एग्जांपल VOR, NDB, NDME, ये सब जो हमारे हो गए ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन एड्स हो गए।
ठीक है, दीज आर द ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन एड्स। और जनरली एयरक्राफ्ट नेविगेट डायरेक्टली बिटवीन द ग्राउंड स्टेशंस, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में, बिटवीन स्टेशंस, राइट, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में ये लोग कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी एरियल नेविगेशन नहीं है, मतलब हम लोग अभी मैं बताऊंगा जब नेक्स्ट बताऊंगा आरनेव का तो बताऊंगा। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दीज रूट्स आर वेरी लेस फ्लेक्सिबल। इफ वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, सो लेस फ्लेक्सिबल, मतलब जो रूट फिक्स है उसी रूट पे हमें जाना पड़ेगा, राइट, लेस फ्लेक्सिबल, एंड वी हैव टू फॉलो ग्राउंड लोकेशन, ग्राउंड स्टेशन लोकेशंस। ठीक है, हमें उस रूट को फॉलो करके ही जाना पड़ेगा, एंड इट इज वेरी लेस फ्लेक्सिबल। और इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर जो कन्वेंशनल इक्विपमेंट्स है वो रहने ही चाहिए। ठीक है, तो इट रिक्वायर्स aircraft to have conventional navigation equipments, राइट, कन्वेंशनल नेविगेशन इक्विपमेंट्स इसके ऊपर रहने चाहिए। और ऑफन डायरेक्ट पाथ इसके अंदर हमें अलाउ नहीं होता, जैसे मैंने बताया था जब मैं तुम्हें चार्ट एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने बताया था कि एटीएस रूट पब्लिश रहते हैं, राइट, देयर आर एटीएस रूट, फॉर एग्जांपल दीस आर एटीएस रूट्स, राइट, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में, राइट, दिस इज स्टेशन नंबर 1, दिस इज स्टेशन नंबर 2, दिस इज स्टेशन नंबर 3, राइट, सो देयर आर रूट पब्लिश्ड, राइट, ये रूट पब्लिश कर दिया गया है कि यहाँ से तुम्हें जाना है और यहाँ पे हमें जाना है। बट एक और कंडीशन बताया था कि अगर जो हमें इस रूट को फॉलो नहीं करना है तो हम सीधा डायरेक्ट भी फ्लाई कर सकते हैं, राइट, वी विल नॉट फॉलो दिस रूट, हम सीधा क्या करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे, राइट, तो वो चीजें इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जहां पे नॉन आर्नेव रूट्स रहते हैं वो उसका लिमिटेशन है, राइट डाउन often follows less direct paths, often follows less direct path due to station placement, due to station placements। ठीक है, इसमें डायरेक्ट पाथ पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज ये फिक्स कर दिया गया है। और यहाँ पे अगर जो तुम जा रहे हो तो तुम्हें गाइड कौन करेगा, हु विल बी गाइडिंग यू द पाथ, इसीलिए। अब हम अगर जो आरनेव की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट आरनेव, सो आरनेव क्या है, लेट्स राइट डाउन। So if you talk about RNAV, so it is generally those type of navigation जहाँ पे GPS, INS और other area navigations available हैं, right? तो हम लिखेंगे इसके अंदर, we'll write down the point, GPS, GNSS, right? GPS जैसा कोई और भी तुम्हारे पास नेविगेशन सिस्टम है, right? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, राइट, सो जीपीएस इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अगर ऐसा कोई इसके अलावा और कोई सिस्टम है तुम्हारे पास तो चलेगा, कोई जरूरी नहीं जीपीएस ही हो, राइट। तो तो दूसरा है आईएनएस। सर जैसे कि हमने नॉन आर्नव के लिए बोला ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन है, तो आर्नव हाँ होगा सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन। हाँ, ऐसा बोल सकते हो, यस। ठीक है, सैटेलाइट नहीं, आईएनएस इज नॉट अ सैटेलाइट। ठीक है, आईएनएस जो है अपने आप में एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट सिस्टम है। तो अगर तुम्हारे पास आईएनएस अवेलेबल है तो भी तुम आरनेव का यूज कर सकते हो, राइट। एंड अदर नेविगेशन सिस्टम्स वो सारे जो ग्राउंड बेस्ड इक्विपमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, अदर एरिया नेविगेशन सिस्टम, ठीक है, वो सारे आरनेव में आ जाएंगे। फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई एनी डिजायर्ड पाथ विद इन सिस्टम रेंज, सिस्टम कवरेज। ठीक है, कोई भी फ्लाइट पाथ पे जा सकता है, जैसे यहाँ पे लिमिटेशन था, राइट, कि हमें उस पर्टिकुलर रूट को ही फॉलो करना है। इसके अंदर कोई भी फ्लाइट रूट पे जा सकता है, बस वो क्या है कि एक पर्टिकुलर कंट्रोल रीजन में रहना चाहिए और सिस्टम में रहना चाहिए। जैसे आईएनएस जो है ये टोटली किसके ऊपर काम करता है, तो नेविगेशन डेटा पे, राइट, एक नेविगेशन डेटा होता है जो हर 28 डेज पे अपडेट किया जाता है, अगर तुम्हें पता हो तो।
ठीक है, तो इस डेटा के अंदर तुम्हारा वो रूट रहना चाहिए, पर्टिकुलरली वो नेविगेशन डेटा जो है पर्टिकुलर उस रीजन को कवर करना चाहिए। तो अगर जो कवर कर रहा है तो डेफिनेटली यू कैन गो। और जीपीएस पे जा रहे हो तो जीपीएस का वर्ल्ड कवरेज है, कहीं पे भी जा सकते हो, बस शर्त यही है कि इट शुड कवर दी पर्टिकुलर रीजन जहां पे भी तुम जा रहे हो। अब इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो मोर डायरेक्ट्स, राइट, इसके अंदर हम ज्यादातर डायरेक्ट फ्लाइट्स बहुत करते हैं, मोर पॉसिबल, राइट, डायरेक्ट फ्लाइट्स होगा। और फ्यूल इफिशिएंट पाथ, जहां पे हमें फ्यूल अच्छा मिल जाए, फ्यूल इफिशिएंसी मिल जाए। राइट, मोर डायरेक्ट्स एंड फ्यूल एफिशिएंट पार्ट्स इसमें यूज कर सकते हैं। और एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट रिक्वायर्स अ आरनेव सर्टिफाइड एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट्स, requires RNAV certified aircraft equipments। इस रूट पे फ्लाई करने के लिए वो इक्विपमेंट्स हमारे ऑन बोर्ड रहना चाहिए। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सो इट प्रोवाइड्स, ऐसे लिखेंगे, इट एनेबल्स पॉइंट टू पॉइंट नेविगेशन independent of ground stations। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्राउंड स्टेशंस। और इसको हम जनरली बोलते हैं एरिया नेविगेशन रूट्स। ठीक है, वी जनरली कॉल्ड एज एरिया नेविगेशन रूट्स। और इस वाले को हम क्या बोल रहे थे? वी विल कॉल इट एज कन्वेंशनल रूट्स। कन्वेंशनल रूट्स, ठीक है। दिस वाज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ आरनेव एंड नॉन आरनेव। अब हम चलते हैं सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल स्कोप, मतलब कौन से लोकेशन पे लोकेटेड है, कंट्री वाइज, नेशन वाइज, इस तरीके से भी उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन। विल चेंज द कलर। तो जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो दोनों रूट्स आ जाएंगे, राइट। इसके अंदर बोथ आरनेव एंड नॉन आरनेव दोनों रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, बोथ आरनेव एंड नॉन आरनेव रूट्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द ज्यूरिडिक्शनल कवरेज, कौन से ज्यूरिडिक्शन में आ रहा है। तो सबसे पहला आता है डोमेस्टिक रूट्स। इफ यू टॉक अबाउट, इसके अंदर क्लासिफाई करते हैं तो आ जाता है डोमेस्टिक रूट्स, राइट, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से करते हैं। तो डोमेस्टिक रूट्स, नाउ व्हाट आर डोमेस्टिक रूट्स? सो इफ यू टॉक अबाउट डोमेस्टिक रूट्स, तो इसको हम लिखेंगे रूट्स कंटेन एंटायरली विद इन अ सिंगल कंट्री। वो रूट्स जो सिर्फ एक कंट्री के अंदर है, दूसरे कंट्री में जाते नहीं है। कंटेन्ड entirely within a single country's sovereign airspace। sovereign airspace, ठीक है, जो एक सिर्फ एक कंट्री के अंडर कन्फाइंड है, उस रूट को हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक रूट्स। इट इज टोटली गवर्न बाय द नेशनल एविएशन अथॉरिटी, राइट, इसकी जुरिडिक्शन इज गवर्न बाय नेशनल एविएशन अथॉरिटी।
फॉर एग्जाम्पल हमारी नेशनल एविएशन अथॉरिटी कौन सी है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। ठीक है, इंडिया के सारे रूट्स कौन डिफाइन करेगा? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कंट्रीज कैन इम्प्लीमेंट नेशनल स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स, मतलब इस पूरे रूट्स के ऊपर क्या रूल्स लगाने क्या नहीं लगाने पूरा कौन ध्यान देता है? वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल कंट्री ध्यान देगा। ठीक है, और डेजिग्नेटेड एग्जांपल ले लेंगे। सो फॉर एग्जांपल विस्की 20 साउथ, राइट। ये जो W है, इट इज जनरली फॉर द US। ओके, और दूसरा जो है K, राइट। इंडिया के लिए जो है K इज अ सफिक्स, ये सफिक्स में रहेगा। और इंडिया, दिस वाज द डोमेस्टिक रूट्स। अब हम दूसरा लिखेंगे इंटरनेशनल रूट्स। So if we talk about international routes, so international routes वो कौन से रूट्स हैं? तो रूट्स क्रॉसिंग बाउंड्रीज बिटवीन FIR, ठीक है, दो FIR के बीच में जो बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली और मुंबई दो FIR को क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे कोई रूट से जो इनको क्रॉस कर रहा है, या फिर अगर हम हमारे इंडियन FIR की बात नहीं करते, इट गोज अराउंड, जैसे इंडिया से कोई दूसरे कंट्री से लिंक हो रहा है, उन सारे रूट्स को हम इंटरनेशनल रूट बोलेंगे, राइट। और नॉर्मल FIR को भी क्रॉस कर रहा है तो उसको हम FIR मतलब इंटरनेशनल रूट्स में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो लिखो रूट्स क्रॉसिंग बाउंड्रीज बिटवीन FIR, that is flight information region or sovereign states, ठीक है, दो FIR को क्रॉस कर रहे हैं या फिर सोवरेन स्टेट्स को क्रॉस कर रहे हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज ए इंटरनेशनल रूट्स। ठीक है, अब इन सारे रूट्स का कोऑर्डिनेशन, जैसे अगर जो दो स्टेट्स में जा रहे हैं, तो दोनों स्टेट्स को मिलकर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, इनके रूल सेट करने पड़ेंगे, राइट। तो रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर्स, जो भी सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे दोनों स्टेट के, वो आपस में मिलके इसके रूल सेट करेंगे इस पर्टिकुलर रूट के, राइट। और इट हैज टू फॉलो द इकाउ गाइडलाइंस, राइट। इकाउ के जितने भी गाइडलाइंस हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, दे हैड टू कॉम्प्लाई। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनली हो जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही स्टेट में रहने वाले, दीज आर द इंटरनेशनल रूट्स जो डिफरेंट स्टेट्स के एयरक्राफ्ट फ्लाई करेंगे, डिफरेंट रीजन के एयरक्राफ्ट, डिफरेंट जोन के एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे होंगे, तो दे नीड टू कॉम्प्लाई विद द इंटरनेशनल रूल। ठीक है, इसके डेजिग्नेटर्स कैसे हो सकते हैं? तो इट कैन बी अल्फा 1 2 3 ब्रावो 4 5 6, right? These are the examples of global RNAV routes. अरे क्या हो गया? These are the examples of global RNAV routes. अल्फा 1 2 3 ब्रावो 4 5 6। अब हम लोग एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है, कि RNAV रूट्स कौन से हैं और नॉन RNAV रूट्स कौन से हैं। ठीक है, these were the examples अल्फा 1 2 3 ब्रावो 4 5 6। ठीक है, अब जनरली पहले अंडरस्टैंड करते हैं, इफ आई एम सेइंग, कोई भी एक रूट में उठा लेता हूँ,
if I am saying whiskey 20 south, right, this was the actual route जो मैंने previous examples में लिया था. So यहाँ पे whiskey 20 क्या है? Whiskey is the, right, whiskey हमें क्या बताता है? So it indicates the, it is a prefix. हम इसको एक तरीके से बोल सकते हैं prefix, right? और ये है suffix, right? This is the prefix, this is the suffix. So prefix में भी ये क्या बताएगा हमें? It is a domestic airport, domestic route, right? Prefix हमें क्या पता चलेगा कि either it is a domestic और RNAV और non RNAV का पता चलेगा. तो here W indicates the non RNAV. इसके प्रीफिक्स से एक चीज पता चलेगा कि either it is डोमेस्टिक और इंटरनेशनल. दूसरा, इस 20 नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ W20 indicates the route number. सिंपल सा मतलब है, it is nothing but a route number. And F indicates the direction. If it is a directional flight, जैसे मैंने already बताया हुआ कि there are, it can be a directional or bi-directional routes. ठीक है. If S is mentioned in the suffix, so it is nothing but a directional suffix. Right? ये जो S है, it can be S, N, E, W, anything. Right? South, north, east, west, कुछ भी हो सकता है. Right? और इसके बीच वाले डायरेक्शंस भी हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, जनरली ये 4 यूज किए जाते हैं. चलो अब हम लिस्ट बनाते हैं, राइट? कितने, मतलब क्या क्या प्रीफिक्सेस हो सकते हैं और क्या क्या सफिक्सेस हो सकते हैं. ठीक है, सारे रूट्स के क्या क्या प्रीफिक्स हो सकते हैं. तो हम एक चार्ट बना लेंगे. पहले हम प्रीफिक्स लिख लेंगे. सो चार्ट इस तरीके का बनेगा. प्रीफिक्स, रूट टाइप, ओके, एंड अल्टीट्यूड भी है कहीं कहीं पे. टिपिकल अल्टीट्यूड, और इसमें हम लिख लेंगे इस तरीके का रूट, रीजन और नोड्स. ठीक है, इतना कॉलम बनाना है. प्रीफिक्स, रूट टाइप, टिपिकल अल्टीट्यूड एंड रीजन एंड नोड्स. हम पर्टिकुलर हर रूट्स के बारे में लिखेंगे. तो सबसे पहला हम लोग जो क्लासिफिकेशन बना रहे हैं, दैट इज दी फॉर दी आर्नेव रूट्स, राइट? अभी जो जो लिस्ट लिखाऊंगा, पहला है ए, बी, जी एंड आर. अगर इनमें से कोई प्रीफिक्स होता है, सो इट इज हाई लेवल आर्नेव रूट्स. हाई लेवल आर्नेव. ठीक है, ए, बी, जी, आर. अल्टीट्यूड कितना हो सकता है? तो अबव फ्लाइट लेवल 195. ठीक है, 19,500 के ऊपर. These are generally a long range routes and efficient cruise. ठीक है, these are long range routes. ये जिनके ऊपर भी ये प्रीफिक्स लगे रहेंगे, ये लंबे लंबे रूट्स रहेंगे, छोटे रूट्स नहीं रहेंगे. राइट? ये हो सकता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाए. ठीक है, नेक्स्ट है LMNP. ठीक है, LMNP. These are low level RNAV routes. लो लेवल RNAV routes. और ये इसका अल्टीट्यूड क्या है? तो बिलो फ्लाइट लेवल 195. ठीक है, 195 के नीचे ये रहेंगे, और जहाँ पे 195 के ऊपर है वहां पे ABGR. जहाँ पे हमें प्रीफिक्स दिख जाता है ऑटोमेटिकली, हमें समझ आ जाना चाहिए कि हमें उस रूट पे किस लेवल पे फ्लाई करना है.
और जनरली इनका नोट्स क्या है, तो दीज आर जनरली टर्मिनल और एन रूट ट्रांजिशन रूट्स, जहाँ पे हम जनरली चेंज कर रहे होते हैं या फिर अप्रोच कर रहे होते हैं, लैंडिंग कर रहे होते हैं, उन जगह पे ये सारे रूट्स रहते हैं, इन रूट ट्रांजिशन। ठीक है, एक और क्लासिफिकेशन है इसमें, TYZ, TYNZ, these are regional RNAV routes। ठीक है, रीजनल RNAV रूट्स, ये एक पर्टिकुलर रीजन के लिए हो सकते हैं। स्पेसिफिक इकाऊ रीजन एप्लीकेशंस। ठीक है, इसका लिस्ट बना लेंगे अच्छे से फटाक से, फिर हम लोग दूसरी तरफ बढ़ते हैं। This was the non-RNAV routes. This was the RNAV route. Sorry, this correction, RNAV routes. अब हम लोग लिखेंगे non-RNAV routes। ठीक है, नॉन RNAV रूट्स में कैसे कौन से आ जाते हैं, तो सबसे पहला है V, राइट। अगर कहीं पे हमें V दिख जाता है तो these are generally a non-RNAV routes और conventional routes, राइट। These are generally the prefixes, suffixes बाद में बताऊंगा, ये prefixes है। तो prefixes में अगर जो V दिखता है तो this is generally called as a Victor Airways। We will call it as a Victor Airways, or this is below 18,000। 18,000 फीट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे नोट्स में, लो और मीडियम अल्टीट्यूड्स, लो और मीडियम अल्टीट्यूड रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट है जे, जूलियट, विल कॉल इट एज जे। सो वे इसका डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, रूट टाइप में आएगा जेट रूट्स। रूट्स, और ये जनरली कहा जाता है अबाउ 18,000। ठीक है, 18,000 के ऊपर हाई अल्टीट्यूड जेट ट्रैफिक। फिर उसके बाद है एच, दैट इज हेलीकॉप्टर रूट्स। इनका अल्टीट्यूड वेरी करता है, कोई अल्टीट्यूड फिक्स नहीं किया गया है, राइट। सो इट वेरीज। और डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर कॉरिडोर, इसमें हम नोट्स में लिखेंगे, इट इज अ डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर कॉरिडोर। कॉरिडोर मीन्स रूट्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा है विस्की, जो हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, विस्की, डब्लू। दीज आर नथिंग बट डोमेस्टिक रूट्स। उस पर्टिकुलर नेशन का, तो इसका भी अल्टीट्यूड फिक्स नहीं है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल अल्टीट्यूड्स, और इट इज अ नेशनल डोमेस्टिक नेटवर्क। ठीक है, जैसे हाईवेज रहते हैं ना हमारे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, फिर और भी बहुत सारे रूट्स रहते हैं, वैसे यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये है टोटल
इतने हैं, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे रूट्स के, ठीक है। आर्नेव एंड नॉन आर्ने रूट्स, दिस आर द प्रीफिक्सेस व्हिच कैन बी यूज्ड। कोई भी रूट पे तुम्हें ये देखने को मिल जाएगा, ए बी जी आर एल एम एन पी टी वाई जेड वी जे एच डब्ल्यू, ठीक है। इसके बाद हम सफिक्सेस देखते हैं, इतने ही प्रीफिक्स मिलेंगे, इससे ज्यादा प्रीफिक्स हमें नहीं मिलेगा। और इसके नीचे एक और नोट लिख सकते हो, राइट। एक नोट लिखेंगे हम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट। सो नोट में लिखेंगे लेटर्स, लेटर्स एफ आई एंड ओ are never used as single letter prefix due to voice communication confusion। ठीक है, ये तीन लेटर्स को हम जनरली यूज नहीं करते हैं, एफ आई एंड ओ को, ठीक है। क्यों नहीं यूज करते हैं? तो एफ जनरली किसको रिसेंबल करता है? इट रिसेंबल्स ई, काफी मिलता जुलता है, राइट। इन रिसेप्शन एफ कैन बी कंफ्यूज्ड विथ ई, ठीक है। और आई कैन बी कंफ्यूज्ड विथ वन, ठीक है, आई कैन बी कंफ्यूज्ड विथ वन। सिमिलरली ओ कैन बी कंफ्यूज्ड विथ जीरो, ठीक है। इसी वजह से हम इन तीन वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं इन प्रीफिक्स। देखो कहीं पे भी ये तीन वर्ड नहीं दिखेंगे हमें, ए बी जी आर एल एम एन बी, राइट। ये सब इनको हम गलती से भी यूज नहीं करेंगे। नाउ लेट्स राइट डाउन द सफिक्सेस। हमारे पास चार सफिक्सेस है जो ऑल हर जगह यूज होते हैं, राइट। एंड सफिक्सेस का अलग अलग मीनिंग है, सो विल मेक अ हेडिंग सफिक्सेस। स्पेशलाइज रूट सफिक्सेस। सफिक्सेस में डायरेक्शनल सफिक्सेस ही है, राइट। इसमें वो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, एन एस डब्ल्यू ई, राइट। दिस आर द सफिक्सेस व्हिच आर जनरली यूज्ड। एक इसी के अंदर हम नीचे कंटिन्यू करेंगे वो जो हमने बनाया था स्पेशलाइज प्रीफिक्सेस, इस तो मैंने रह गया, राइट। इसके अंदर हम नीचे कंटिन्यू करेंगे स्पेशलाइज्ड प्रीफिक्स, स्पेशलाइज्ड रूट प्रीफिक्स, दिस आर स्पेशलाइज्ड, ठीक है। किसी चीज स्पेशल रूट्स ऐसा बोल सकते हो। सो प्रीफिक्स में अगर जो इसी रूट में हम कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। अगर जो प्रीफिक्स में के है, के, सो इट इज अ हेलीकॉप्टर लो लेवल रूट्स, लो लेवल, ठीक है। इसके पहले भी हमने देखा था कि अगर जो सिर्फ एच था तो हेलीकॉप्टर रूट्स था, बट हेलीकॉप्टर में भी अगर प्रीफिक्स में के दिखता है तो इट इज हेलीकॉप्टर लो लेवल रूट्स, डेडिकेटेड लो लेवल लो अल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस, ठीक है। जनरली इसका कोई अल्टीट्यूड फिक्स नहीं किया गया है, बस जनरली यहाँ पे हम नोट्स में लिख लेंगे इट इज डेडिकेटेड लो लेवल लो अल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस, डेडिकेटेड लो अल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस, ठीक है, के। और दूसरा है यू, जो कहीं यू मिल जाता है, दिस इज ऑल्सो स्पेशलाइज रूट, सो यू इज अपर लेवल रूट्स, upper level roots generally above flight level 245, राइट। 24,500 के ऊपर के जो फ्लाइट्स रहेंगे उनके ऊपर ये लागू होंगे, ठीक है। इसके ऊपर हमने देखा था फ्लाइट लेवल 19,500, बट ये वाले जनरली फ्लाइट लेवल अबव
ठीक है, अबव फ्लाइट लेवल 2, 4, 5। और उसके बाद है एस। अगर सुपरसोनिक, अगर प्रीफिक्स में एस दिख जाता है तो दीज आर नथिंग बट सुपरसोनिक रूट्स। These are supersonic routes and generally reserved for supersonic flight operations. ठीक है, एस। उसके बाद कहीं पे एक्स दिख जाता है प्रीफिक्स में, सो इट इज रन इन एंड रन आउट। राइट, दिस इज जनरली यूज फॉर ट्रांजिशन, अप्रोच और डिपार्चर के लिए। राइट, कहीं कहीं पे ये रूट स्पेशली अगर जो लैंड करना है किसी एयरपोर्ट पे या फिर डिपार्ट करना है तो दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स, कोई कोई एयरपोर्ट पे दिया जाता है कि हमें इस रूट को फॉलो करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे नोट में अप्रोच और डिपार्चर ट्रांजिशन सेगमेंट। ठीक है, एक्स। These were the overall routes. यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। यहां से हमें एक चीज तो पता चल रहा होगा। राइट, अगर जो हम इस तरीके से जनरल क्लासिफिकेशन कर देते चार्ट से कहीं से भी, सो ए बी जी आर एल एम एन पी टी वाई जेड, दीज आर दी आरनेव रूट्स, हम ऐसा बोल सकते हैं। और उसके बाद अगर जो हम क्लासिफाई करते हैं एच जे वी एंड डब्ल्यू, दीज आर दी नॉन आरनेव रूट्स और कन्वेंशनल रूट्स। और K, U, S and X, these are the specialized operation routes. Specialized. ठीक है, और एक चीज पे अगर जो हम फोकस करते हैं डोमेस्टिक के लिए, जनरली हम लोग ने क्या देखा है इसके अंदर, डोमेस्टिक के लिए कौन से रूट्स मिल जाते हैं, तो W एंड K। राइट, ये कहीं पे भी हो सकता है। अगर जो यूएसए में W मिलता है तो वो यूएसए का डोमेस्टिक रूट होगा, इंडिया में W मिलता है तो इंडिया का डोमेस्टिक रूट्स है। राइट, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर स्टेट्स के लिए अलग अलग होगा। W रिप्रेजेंट्स दी डोमेस्टिक रूट, सीधी सी बात है। और इंडिया में K स्पेशली इंडिया के लिए यूज किया गया, कहीं पे K मिलता है तो दीज आर स्पेशली फॉर द K। ठीक है, इंटरनेशनल रूट्स में हमने क्या देखा, ए बी जी आर हो सकते हैं एक्सेट्रा। राइट, कोई भी आरनेव नॉन आरनेव रूट्स कोई भी हो सकते हैं। राइट, दिस कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल। मिक्स रूट कौन से हो सकते हैं, मिक्स रूट मींस आइदर इट इज एंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों हो सकते हैं। तो वी जे, ये जो हमने बाद में रूट्स पढ़े, राइट, वो सारे रूट्स किस में आ सकते हैं, ये वाले नॉन आरनेव रूट्स, वी जे एच डब्ल्यू। तो दिस कैन बी अ मिक्स रूट, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं और डोमेस्टिक, कोई भी, मतलब सारे आरनेव नॉन आरनेव सारे रूट्स, इट कैन बी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, कोई भी हो सकते हैं। राइट, दे आर जनरली कॉल्ड एज ए मिक्स रूट्स। ठीक है, और ये सारे डेजिग्नेटर्स किस में स्टोर रहते हैं, अभी तक जितने बताया ये सब चीजें किस में स्टोर रहेगा, नेविगेशन डेटा में।
These all are stored in navigation data. Are you there, Salman? ये सो गए? हेलो हेलो, माइक चेक, हेलो। हाँ सर। सुन रहे हो कि सो गए? सुन रहा हूँ। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आपका एक डिस्प्ले चला गया है। डिस्प्ले चला गया? अच्छा, एक सेकेंड। ओके, तो नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक है, that is on the basis of the ATS root diameter. ठीक है, जो हमने रूट्स तो पढ़ लिए, but these roots are generally divided into domestic and international roots. On the basis of domestic and international roots, they will be having certain classification on the horizontally and vertically. ठीक है, तो अब ये जो रूट्स है जनरली they are classified into two categories, Radara and Mawara. RDARA and MWARA, Radara and Mawara, right? अब what is Radara, right? तो पहले हम इसका definition लिखते हैं. We'll write down some lines before we go deep inside the Radara and Mawara. So that is the for the purpose of communication, हम लिखेंगे for the purpose of communication, domestic routes are divided into 5 major areas and international routes are divided into 3 major areas. ठीक है, domestic routes are divided into 5 major areas and international routes are divided into 3 major areas. ओके, और ये सारे चैनल किस पे ऑपरेट करते हैं? दिस ऑल चैनल ऑपरेट ऑन HF फ्रीक्वेंसी. ठीक है, किस पे काम करते हैं? दिस ऑल ऑपरेट ऑन दी HF फ्रीक्वेंसी. अब ध्यान देने वाली बात कौन सा है? सो इफ रडारा जो है, राइट डाउन, रडारा जो है, इट इज said to be as regional and domestic air route areas. क्या है ये? Regional and domestic air route areas. ठीक है, जो रीजनल और डोमेस्टिक एयर रूट एरियाज है, ये कौन से हैं? 5 कौन से रडारा रूट एरियाज है? सो नंबर 1 इज दी नॉर्थ रडारा, राइट? जनरली इसको हम VI लिखते हैं. ठीक है, फिर है ईस्ट रडारा, इट इज रिटन एज VE. नॉर्थ ईस्ट रडारा,
This is also written as VE. Fourth one is South Radara. This is the VO. And fifth one is the West Radara. VA. We further have HF radio stations. So कौन से हैं? दिल्ली रेडियो, number 1. Number 2 is the Mumbai radio. Number 3 is the Kolkata radio. Number 4 is the Chennai radio. Right, these are the 4 radio stations जो generally available हैं. VI particular radio लिखेंगे, VA, फिर VE and VO, इस तरीके से. राइट, ये चारों FIR रीजन्स में आ जाते हैं. जैसे I represent the दिल्ली, A represents the, जैसे अगर जो हम इंडिया मैप की बात करें, if we talk about इंडिया मैप इस तरीके से, so they were classified into 4 regions, right? They were classified into 4 regions. कौन से थे? FIR मैंने लिखाए थे ना प्रीवियस क्लासेस में, A, E, I, O. Right, there were 4 FIR regions. जो I था, that A is for West region, right? A is for Mumbai FIR. E was for Kolkata. I is for Delhi and O is for Chennai. ये 4 FIR regions थे हमारे. तो उसके हिसाब से यहाँ पे 4 रेडियोस हैं और 4 रडारा रीजन्स हैं, 5 रडारा रीजन्स हैं. सो अब रडारा है क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रडारा? सो मवारा का फुल फॉर्म लिख लो. रडारा का तो रीजनल एंड डोमेस्टिक एयर रूट एरियाज हो गया. मवारा का है मेजर वर्ल्ड एयर रूट एरियाज. राइट, जो इंटरनेशनल रूट्स आ जाएंगे वो जनरली इसमें आ जाएंगे. मेजर वर्ल्ड एयर रूट एरियाज. So we'll write few points about the Radara and Mawara. Radara क्या है? These are the, ये जो हमने रूट्स अभी पढ़े ना, वही रूट्स को, उन रूट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है रडारा एंड मवारा में. ठीक है. So radara are those type of routes which cover regional and domestic areas. Regional and domestic air routes, particularly those over the land. ठीक है. जमीन के ऊपर जितने भी रूट्स हैं, डोमेस्टिक और रीजनल रूट्स हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे? रडारा में आ जाएंगे. और मवारा के अंदर क्या आ जाएंगे? तो लार्ज मोस्ट एक्सटेंसिव एरियाज, नंबर ऑफ मेजर वर्ल्ड एयर रूट्स हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हैं. हमने क्या देखा था? एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक FIR से दूसरे FIR में जा रहे हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे? वो सारे मवारा में आ जाएंगे. ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दी मवारा. इस तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हैं. डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स जो हमने पढ़े थे, वो रडारा और मवारा के बीच में भी क्लासीफाई किए जा सकते हैं. नाउ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मवारा है, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 9 जियोग्राफिकल रीजन्स.
ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। मेजर वर्ल्ड एयर रूट्स है, दे आर क्लासिफाइड इनटू 9 जियोग्राफिकल रीजन्स। इसका चार्ट बना लेंगे हम, राइट। रीजन कोड, और जियोग्राफिकल एरिया। रीजन कोड और जियोग्राफिकल एरिया। सो रीजन कोड में हम लिखेंगे, सबसे पहला है हमारा ए, राइट। ईस्ट नॉर्थ अटलांटिक, ये रूट्स कहाँ पे मिलेंगे हमें? ईस्ट नॉर्थ अटलांटिक। अल्फा के जो सारे रूट्स है वो हमें नॉर्थ अटलांटिक रीजन में मिलेंगे। बी जो है, इट इज द वेस्ट नॉर्थ अटलांटिक। सी इज द कैरेबियन, ये हमें कैरेबियन स्टेट्स में, कैरेबियन कंट्रीज में हमें ये देखने को मिलेगा सी। और डी इज फॉर द साउथ अटलांटिक। फिर ई जो है, इट इज फॉर द ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक। ईस्ट नॉर्थ पैसिफिक। और एफ जो है, इट इज द सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक। जी जो है, वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक। जो हमारे इंडिया में देखे जाते हैं, दैट इज द एच, इंडियन ओशन। एंड जे, राइट, साउथ पैसिफिक। राइट, इंडिया में ये दो रूट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, एच और जे के, मवारा के, राइट। मेजर वर्ल्ड एयर रूट्स जो हैं, ये सारे इधर देखने को मिल जाएंगे हमें। ठीक है, सो आगे कंटिन्यू करना है कि ब्रेक लेना है? सब ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का। ओके, द विल हैव अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। ओके सर।